آج ہم بات کریں گے عمر رسیدہ افراد کے سماجی تحفظ کی، یعنی سینئر سٹیزن کے سوشل پروٹیکشن کی۔ پاکستان میں سوشل پروٹیکشن کا نظام ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف اقدامات کیے گئے، پروگرامز چلائے گئے، اور 1967 کی بات کریں تو پہلی اسکیم سے لے کر 2017 کی نیشنل سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی تک یہ عمل کئی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ اس دوران صوبوں کو زیادہ خود مختاری دینے کے لیے 18ویں آئینی ترمیم بھی عمل میں آئی، جس سے یہ ذمہ داری صوبوں کو منتقل ہو گئی، اور حکومت کا مقصد یہ ہے کہ سب سے غریب اور کمزور جو طبقات ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور عمر رسیدہ افراد کو بہتر سہولیات فراہم کی جائے جن کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ ذرا جب بہتر ہیلتھ کی سچویشن ہوتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھی سہولیات دی جا رہی ہیں میڈیکل کے شعبے میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رسیدہ افراد کی جو عمر ہے بڑھتی ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملک کے جو 7% افراد ہیں وہ ظاہر ہے وہ عمر رسیدہ ہے، ان کی عمر جو ہے وہ 60 ایئرز پلس ہے۔ بالکل، تو اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام، جو موجودہ نظام ہے، کیا واقعی اس مقصد کو پورا کر رہا ہے، سوشل پروٹیکشن آف سینئر سٹیزن؟ اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے، اور گفتگو کرنے کے لیے ڈائریکٹر وزارت انسانی حقوق ڈاکٹر محمد عارف صاحب ہمیں جوائن کر چکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں جتنے ادوار سے گزرا ہمارا سوشل پروٹیکشن کا یہ پورا کا پورا نظام، آج کا نظام کتنا سپورٹ کر رہا ہے ہمارے سینئر سٹیزنز کو، عمر رسیدہ افراد کو؟ لیکن جی میں یہ کہوں گا جو سماجی تحفظ کا نظام گورنمنٹ آف پاکستان نے جو شروع کیا، یہ چند ان ممالک میں ہیں جنہوں نے بہت پہلے یہ اقدامات لیے۔ جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ 1967 سے ہی ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور سوشل پروٹیکشن کی سکیمز لانچ کی گئیں، اور اسپیشلی لیکن فوکس ان کا ابھی بھی یہ ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے، اسپیشلی جو اٹانومس باڈیز میں لوگ کام کر رہے ہیں، فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے فوکس رکھا گیا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ ان کو پیکیونری بینیفٹس دیے جائیں پینشن کی شکل میں۔ لیکن کوئی بھی نظام آپ کو پتہ ہے کہ چیلنجز ہوتے ہیں اس میں، ہمارے یہاں بھی یہی چیلنجز ہیں۔ اگر ہم اس کو فگرز کی بات کرتے ہیں تو 2.75 ملین جو ریٹائرڈ افراد ہیں ان کی سوشل پروٹیکشن کا نظام تو ہے، جبکہ ہیلپ پیج کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 11.75% تقریباً اس وقت ہیں جن کو ضرورت ہے اس پروٹیکشن سسٹم کی۔ اور مختلف ادوار میں گورنمنٹ آف پاکستان انٹرونشنز کرتی رہیں ود سپورٹ آف پروونشل گورنمنٹس، اور اسپیشلی 18ویں ترمیم کے بعد 2010 میں جو انٹروڈیوس ہوئی تھی، تو یہ مینڈیٹ بڑھ گیا ہے صوبوں کا، اور صوبوں نے سوشل سیکورٹی پروٹیکشن کے حوالے سے نہ صرف اپنے پورے محکمے بنائے ہوئے ہیں بلکہ وہ ان میں امپروومنٹ بھی لا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ لائک جیسے پینشنز کے علاوہ ان کو سوشل سیکورٹی سکیمز ہیں، ورکرز ویلفیئر بورڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے تحت نہ صرف ان بزرگوں کو فوائد ملتے ہیں بلکہ ان کی جو بچے ہیں ان کو بھی اسکالرشپس گورنمنٹس دیتی ہیں کہ ورکرز کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کو تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا جو فلیگ شپ پروگرام شروع ہوا 2017 کے بعد اگر بات کریں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے ایک بہت بڑا سوشل سیفٹی نیٹ ہے یہ، اور پوری دنیا اس کی معترف ہے کہ اس کی انٹرونشنز کی وجہ سے جو ولنریبل طبقات تھے جس میں بزرگ بھی شامل ہیں ان کو بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی باہمت بزرگ کے نام سے ایک اسکیم ہے جس میں ان کی فائنانشیل اسسٹنس دی جاتی ہے، اور اس کا بڑا مربوط نظام ہے۔ وہ پہلے ڈیٹا سروے کرتے ہیں، پاورٹی سکور نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو ریئل ٹائم میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند بزرگ ہیں تو ان تک وہ امداد پہنچائی جاتی ہے۔ اسپیشلی جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ پروسیجرز کیا ہیں اور کس طرح سے آپ نے اپنا رائٹ لینا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر اگر میں آئی سی ٹی کی بات کروں تو او آئی بی جو ہے وہ فیڈرل لیول کا ایک ادارہ ہے، وہ پورا ایک مربوط نظام ہے اس کا پینشنز کا، کہ اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ فرم دیتی ہے اور کچھ جو ہے کٹوتی ہوتی ہے ملازمین کی اپنی تنخواہوں سے، اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو پینشن ملتی جاتی ہے، اور اس میں بھی گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور اس کی ایک تو آؤٹ ریچ بڑھائی جائے اور فوائد بھی اس میں زیادہ شامل کیے جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پینشن کی حد تک تھا، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جب تک سوسائٹی کو موبیلائز نہ کیا جائے یا ایسے فورم نہ مہیا کیے جائیں جہاں پہ یہ بزرگ افراد آ کے اپنے مسائل بتائیں، اپنی کوئی ایکٹیویٹی کریں، تو منسٹری آف ہیومن رائٹس کے تحت 8 ایسے سوشل ویلفیئر کے ادارے اسلام آباد میں چل رہے ہیں۔ وہ مختلف رورل ایریاز میں بھی وہ ادارے موجود ہیں۔ اس میں اسپیشلی جو بزرگ خواتین ہیں
वो वहाँ आती हैं, कम्युनिटी के प्रोग्राम्स वहाँ चलते हैं और स्किल और ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और उनके अदरवाइज़ भी अगर कोई मसाइल हैं तो उसको हल करने में वो जो हमारे सेंटर्स हैं वो बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक हेल्पलाइन है 1099, सही, उसको कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान से एक्सेस कर सकता है। अगर उसको कोई इस तरह के मसाइल हैं तो वहाँ पे हमारे लॉ ऑफिसर्स मौजूद हैं जो जो प्रॉपर रहनुमाई करते हैं उनकी। फिर अगर किसी महकमे से रिलेटेड उनका मसला है या कोई और इस तरह का इशू है तो वो उसको हल करने में भी मदद देते हैं। हम बाकायदा उन महकमों को अप्रोच करते हैं, उसका फॉलो अप रखते हैं ताकि उनका मसला वो हल हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़े ऐसे इकदाम हैं, बिल्कुल ऐसे ही बड़े ज़बरदस्त इकदाम हैं जो कि होने भी चाहिए। तो राइट है जो कि आप दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम ये बात करें कि अच्छा जी हम ये चीज़ मुहैया करें, आपको मिलनी भी चाहिए वो चीज़। अच्छा, वैसे में सारे जो सूबे हैं वो भी सेम पेज पे हैं इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ? इसमें आलमोस्ट सेम पेज पे हैं, और उसमें हमारे आईन पाकिस्तान में भी ऐसे तरीक़ाकार वज़े कर दिया गया है कि वफाक और सूबे आपस में कैसे राब्ताकारी करेंगे। सही। मसलन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है। अगर कोई बहुत ही पेचीदा मसला है जहाँ पे मुख्तलिफ सूबों का कोई इख्तलाफ है या तो वहाँ वो पर मिल बैठ के करना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म की सरबराही में वो कौंसल मौजूद है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ साथ हमारा अपना एक मरबूत निज़ाम है सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ताकारी का, तमाम वफाकी वजारतों का। चैलेंजेस ज़रूर हैं, स्पेशली 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स सूबों के पास है, सूबों के पास है और उन्होंने करना है, लेकिन हमारा बहुत कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मौजूद है। अच्छा, आपने एक फिगर शेयर की थी इससे पहले 2.75 मिलियन अफराद की, और आपने कहा कि जो 11.2 मिलियन अफराद उम्र रसीदा हैं, ज़ाहिर है वो उनमें से सिर्फ 2.75 मिलियन अफराद को पेंशन मिल रही है। ये EOBI के थ्रू मिल रही होती है? ये इसमें मुख्तलिफ फोरम EOIB के तहत भी है, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स चल रही हैं सूबों की उनके तहत भी है। ये तो फिर ये जो EOBI से मिल रहे हैं, EOBI से कितने लोगों को मिल रही होती है? EOBI से में भी ये तादाद शामिल है। अच्छा। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा ये है कि EOBI सिर्फ उन इदारों के मुलाजमीन को पेंशन मुहैया करता है जो रजिस्टर्ड हों। जैसे हमारी तनख्वाह से एक अमाउंट कटती है EOBI, तो जो अमाउंट कट रही होती है, जी हाँ, इसका क्या प्रोसीजर होता है? कितने अरसे बाद फिर ये किस एज से ये फिर आपको पेंशन की सूरत मिलना शुरू होती है? क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं होगा इससे मुताल्लिक। इसके दो तरीके, एक तो वो होता है जो सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में आता है या हमारे डिफेंस रिलेटेड जो मुलाजमीन हैं, ठीक है, उनको वफाकी हुकूमत पूरी पेंशन स्कीम है उसकी वो पेंशन मुहैया करती है 60 साल के बाद। 60 साल की उम्र पे जैसे रिटायर हो गया बंदा तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। उसका एक फार्मूला होता है, वो तकरीबन जो उसकी बेसिक पे वो ले रहे होते हैं, आप कह सकते हैं कि 80 to 100% उसको उतना ही मिलना शुरू हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। बेसिक पे? जी, बेसिक पे, विदाउट अलाउंसेस। अच्छा, तो ये जो EOBI आपकी डिडक्शन हो रही होती है हर महीने सैलरी से, ये 60 इयर्स तक डिडक्ट हो तो मिलती है? जी, मैं आता हूँ। अब EOBI का सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। जी प्लीज़ बताएं। ये तो था हमारी वफाकी हुकूमतों का, वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों के जो परमानेंट सिविल मुलाजमीन है, ठीक है, उनकी कोई कटौती नहीं होती फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। अच्छा। जो EOBI की स्कीम है वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। अच्छा। उसमें हाफ एम्प्लॉय ने देना है, उतनी अमाउंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने देनी है। ठीक है, 60 हर महीने देनी है। ठीक है। 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो फिर उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अब जो है हमारी हुकूमत भी इसी तर्ज पे आगे स्कीम लॉन्च करना चाह रही है जुलाई 2024 से। क्या स्कीम है? वो यही होगी कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन होगी, चाहे सरकारी मुलाजमीन है तो भी? जी। अच्छा। 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से ही कटौती होगी 10 गवर्नमेंट पे और करेगी। 20% गवर्नमेंट पे 20 गवर्नमेंट पे करेगी। 20% गवर्नमेंट पे करेगी। सही। अब ये देखते हैं ये किस हद तक ये स्कीम आगे कारआमद होगी। ये अभी इस फाइनेंशियल ईयर से ये लागू हुई है। जो नए मुलाजमीन आएंगे तो हुकूमत का इरादा ये है कि उनको इस तरह से शामिल किया जाएगा। लेकिन पेंशन को तो एक बोझ समझना शुरू हो गई थी हुकूमत, नहीं? वो इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा तादाद है पेंशनर्स की, और फिर हमारी बड़ी लुक्रेटिव स्कीम्स हैं जो पेंशन वाली ऑलरेडी जो चल रही थी। लाइक उसमें यह है कि ताहयात एक तो वो पेंशन का हकदार है और विदाउट एनी टाइम लिमिट जब तक वो जिंदा है मुलाजिम। उसके बाद इन केस ऑफ डेथ उसकी बेवा को वो पेंशन मिल जाती है, और बेवा को भी उस वक्त तक मिलती जाएगी जब तक उसका जो छोटा बच्चा है, अडल्ट बच्चा या बच्ची अडल्ट एज तक नहीं आ जाती। ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है गवर्नमेंट पे, और इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने ये स्कीम किया कि कंट्रीब्यूटरी फंड्स हों, कुछ जो है मुलाजमीन खुद दें, कुछ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे। तो EOBI की स्कीम ऑलरेडी इसी फार्मूले पे चल रही है कि वो कंट्रीब्यूटरी फंड्स होते हैं।
लेकिन ज़ाहिर है इसमें अब पहले तो आपने कहा ना ईओबी में तो 10% जितने भी आप दे रहे हैं तो सेम अमाउंट आपका इदारा पे करता है, लेकिन जो नई स्कीम की बात करें उसमें 10% आप देंगे, 20% गवर्नमेंट देगी। और इसमें फिर मेरा सवाल वही कि बहरहाल इसमें ये ज़रूरी है कि 60 साल तक आपने जॉब बहरहाल की हो? जी बिल्कुल ज़रूरी ये है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। नहीं, अब पेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है, पेंशन के लिए मुख्तलिफ मदारिज हैं। मसलन अगर सिविल सर्वेंट है आप, तो आपकी 25 साल अगर सर्विस हो गई है, ठीक है, तो आप अपनी बिफोर एज ऑफ 60 रिटायरमेंट ले सकते हैं, तब भी आप हकदार पेंशन मिलेगी। या मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप रिटायर हो गए हैं और आपका मेडिकल बोर्ड ने आपको डिक्लेयर अनफिट कर दिया फॉर फर्दर सर्विस, तो उस सूरत में भी गालिबन 10 साल सर्विस अगर आपकी हो चुकी है तो आपको पेंशन के तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जो ये गैप क्यों है इस तरह का गैप, ये है कि बहुत से जो प्राइवेट इदारे हैं वो रजिस्टर ही नहीं कराते अपने आप को। अच्छा, इस वजह से एक तो मुलाजमीन का इस्तेसाल होता है कि एट द टाइम वो जब रिटायर हो जाते हैं उनको आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनको कोई बेनिफिट्स एज सच नहीं मिलते। जरूरत इस अमर की है इदारों को कहा जाए कि आप लाजमी रजिस्टर करें, और EOBI हमारी मालूमात के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन वो अब कंपेल कर रही है इदारों को, और लॉ भी ये प्रोवाइड करता है कि हर इदारा बाउंड है लीगली कि वो अपने आप को रजिस्टर कराए इस पेंशनरी स्कीम के तहत। तो इन इक़दामात को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि तमाम ये लोग उस नेट में शामिल हो जाएं और इनको ये पेंशन के तमाम बेनिफिट्स मिलें। प्राइवेट सेक्टर में वैसे जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ईओबी चूंकि कट रही होती है, इसमें क्या होता है, कितने साल तक जॉब की हो तो फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आपको बाद में पेंशन मिलेगी? अब इसमें थोड़ा सा ये कानूनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जो इदारा रजिस्टर हुआ है उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने क्या कंडीशंस तय की हैं, फिर उसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है मुलाजिम को उसमें क्या कंडीशंस तय की गई हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये इदारे, एक इदारा है जो बड़े इदारे हैं, मुस्तहकम इदारे हैं, उनका निज़ाम बहुत अच्छा है, वो मेडिकल रिलीफ भी देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, उनका जो छुट्टियों का निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, उसमें वो कुछ जो मैंडेटरी लीव होती हैं उसमें वो कटौती भी नहीं करते, और इसके साथ साथ उनका पेंशन का निज़ाम भी इसी तरीके से अच्छा है। तो वो देखना पड़ेगा कि उसका वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है और जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसने एम्प्लॉय के साथ उसकी क्या कंडीशंस हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।